Hello students, myself Professor Deepak Saini. We were doing the female reproductive system. Female reproductive system comprises of ovary, fallopian tube, uterus, vagina and that external genitalia. I have explained you all about the ovaries in my previous lecture, which is also there on my YouTube channel. Today I will do the other parts. The other part you are seeing, that is the next part, is that of the fallopian tube. This is the fallopian tube is there. You see, this is the fallopian tube. The length of the fallopian tube is 10 to 12 centimeter long. That is also given in your NCERT books, and question can be asked in the NEET, what is the length of the fallopian tube? And it is present above and behind the urinary bladder. Because in this diagram it cannot be explained how it is present above and behind the urinary bladder. I will show you the another diagram. This is the diagram you see. This is the diagram. This is a three-dimensional diagram. This is the uterus part, this is the fallopian tube, and this is the urinary bladder. It is present above and behind the urinary bladder. Above and behind the urinary bladder. And moreover, this diagram is also given in your books. And this is here, this is the fallopian tube. You can see it is present. This is a urinary bladder and it is above and behind the urinary bladder is there. ठीक है? तो अब यूरिनरी दिस जो fallopian tube है, they have different names are there. We say it is a uterine tube, we say it is an oviduct is there. I have told you it is 10 to 12 centimeter long. ठीक है? अब इसके different parts आ जाते हैं. They are the infundibulum part. This is a funnel shaped part is there, that is called as an infundibulum. And it has an opening that is called as an ostia, and that opening has finger-like projections. If you see this diagram, this is the infundibulum, and here I have explained that infundibulum, it is a large part, it is a funnel shape which has an opening, and this opening has a finger-like projection that is called fimbriae, which is in touch with that of the ovary as the ovum is released, and it immediately hold that ovum by the sucking action. And this is the ampulla part. ठीक है ना? This is the ampulla part is there. It is a curved part is there. ठीक है? It is swollen part, slightly swollen. And then comes the isthmus. Isthmus part is there. This is narrow part. Then comes the intramural part. This is that part which enters into the uterus is there. So it has infundibulum part, ampulla part, isthmus part. ठीक है ना? So, and intramural part is there. So infundibulum part is a funnel shaped and it has an opening called ostium, and that ostium is surrounded by a finger-like projection called fimbriae. This we name it as in fimbriae is there, and what is the role of the fimbriae? They immediately catch the ovum which is released at the time of ovulation by the sucking action is there. If you see the wall of the ovary, wall of the oviduct, it has three layers. It has three layers is there. That is a mucosal layer, innermost, which is towards the lumen, which is facing the lumen. It has a mucosal layer, and mucosal layer has two type of cells are there. One is the secretory cells, another is that of the ciliated cells are there. ठीक है ना? This is a mucosal layer. This layer is the innermost layer which lines the lumen. It has a two type of cells are there. One is this secretory cell, another is that of the ciliated cells are there. ठीक है? It is a ciliated cell that will create a current in the lumen which will help in the movement of the ovum, and this secretory cell, they produce secretion which will have a nourishing एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन. ठीक है ना? इसकी जो सेक्रेटरी सेल की जो सिक्रीशन होगी वो ओवम को नरिश भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है, और इसके जो ये सिलेटेड सेल्स हैं ये इसकी मूवमेंट से दे क्रिएट ए करंट विच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ infundibulum. ठीक है? देन दिस इज द एम्पुला पार्ट, दिस इज स्लाइटली swollen part. Then comes the isthmus. ठीक है? The isthmus part is there. This is narrow part is there. Fertilization occurs at the junction of ampulla and isthmus. Fertilization occurs at the junction of ampulla isthmus, and this is a uterine part is there. I told you that there are three layers of the fallopian tube.
innermost layer mucosa, which is having two type of cell. Then middle layer is called muscular layer. Middle layer is called muscular layer, that will produce a wave of contraction, and outermost layer is called serosa layer, that will form the, you can say, visceral peritoneum. So this was all about the fallopian tube is there, and the fertilization occurs at the junction of the isthmus and the ampulla is there. तो ये हमने हो गया हमारा. Now we come to that of the uterus is there. Uterus. This is a major part of the. This is a major part of the female reproductive system. This is the uterus. Okay. And uterus has different parts. There is a dome-shaped part is there, that is called as a fundus. Then this is the body part. Then this is the cervix part is there. And the position of uterus is at 90 degree to the vagina. ठीक है, यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि ये आप डायग्राम बुक्स में देखते हो तो ये सीधा सा डायग्राम बन रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम. इफ यू विल सी, you see this is the uterus part and this is a dome shaped part of the uterus, and it is at present 90 degree to that of the vagina, and it is present at 90 degree to that of the vagina. If I also show you the three dimensional part, तो थ्री डिमेंशनल पार्ट में भी आप देखोगे, आई विल शो यू दैट थ्री डिमेंशनल पार्ट. तो वेयर यू विल सी दैट दिस इज, यू सी दिस इज ए थ्री डिमेंशनल पार्ट. दिस इज अ यूट्रस एंड यू आर सीइंग दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, दिस इज द ओवरी and this is the uterus, and it is present at 90 degree to the vagina is there. This is the vagina part, and below the uterus is that of this urinary bladder. ठीक है, urinary bladder जो है that will receive the duct from the kidney part. ठीक है, ये भी आप देख रहे हो, ये इसमें जैसे बोनी स्ट्रक्चर भी है. ये किडनी है, किडनी से देखो यूरेटर जा रहा है, यूरेटर नीचे यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, और ये जो पार्ट आ रहा है आगे आप देख रहे हो, दिस पार्ट is that of the uterus and this is the fallopian tube. ये ovary आ गई. ठीक है, this is the ovary is there, और ये this is ये जो vagina की opening है, and vagina is at 90 degree. Vagina is at 90 degree to that of the uterus. Vagina is at 90 degree to that of the uterus, and in this diagram it is very much clear. You can see this is a uterus and this is a vaginal part is there. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब यूट्रस की जो लेंथ होती है डेट इज़ 7.5 सेंटीमीटर तक जाती है. ब्रेथ जो होती है 5 सेंटीमीटर तक है, और थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर तक है. और एक यूट्रस एक ऐसा पार्ट है, इट एनलार्ज 100 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज देयर टू अकोमोडेट द फ्यूटस एंड एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है ना, फ्यूटस और एमनियोटिक फ्लूइड को अकोमोडेट करने के लिए 100 टाइम्स तक बढ़ जाता है. आप यू कैन सी. उसके बाद इसकी भी देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द यूट्रस आर देयर आर डिफरेंट लेयर्स. अगर हम देखें यूट्रस की, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, पहले तो पार्ट हमने बता दिया, दिस इज द डोम शेड पार्ट दैट इज कॉल्ड फंडस. मेन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एन बॉडी, एंड दिस इज द सर्विक्स पार्ट इज देयर. एट द डोम पार्ट द fetus is attached. It has a different layers are there. Outermost layer is called as in perimetrium, middle layer is called myometrium, and inner layer is called endometrium is there. If you will see these three layers are there, and जो perimetrium आ गया, ठीक है, उसके बाद जो that is outermost layer that is called as in perimetrium. ठीक है, और मिडल की लेयर आती है that is a myometrium. ये myometrium आ गई, और अंदर की जो लेयर है that is the endometrium. जो perimetrium की जो लेयर है, जो perimetrium की जो लेयर है, अगर आप देखोगे तो वो एक सिंपल एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है. ठीक है, और एपिथेल जिसको हम बोल लेते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. ठीक है, दैट इज़ द पेरीमीट्रियम, एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओनली, एंड जो कनेक्टिव टिश्यू मीजोथीलियम. इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओनली, जिसको हम आउटर एडवेंटिशिया भी कह देते हैं. ठीक है, एंड सरोसा, और जो सरोसा है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू मीजोथीलियम कह दिया जाता है. तो हम कहते हैं पेरीमीट्रियम इज एन आउटर मोस्ट लेयर. ये जो सारी इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर एडवेंटिशिया. ठीक है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू ओनली कहते हैं, एंड सरोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू मीजोथीलियम की बनी होती है. बीच वाली लेयर जो आती है डेट इज़ द मायोमीट्रियम है. ये स्मूथ मसल्स की प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द पार्टुरेशन. पार्टुरेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. फिर ये कंटैक्ट करती है, तो बेबी का जो बर्थ है, पार्टुरेशन है, डेट इज़ डन. उसके बाद एंडोमीट्रियम की बात आती है, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. एंडोमीट्रियम जो है, एंडोमीट्रियम की अगर मैं बात करूं तो डेट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल
सेल्स, ठीक है, और उसमें यूट्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, दे हैव आल्सो ब्लड सप्लाई इज़ देयर एंड इट इज़ द एंडोमीट्रियम जो है, ये जो एंडोमीट्रियम जिसकी हम बात करते हैं, इट इज़ द एंडोमीट्रियम जो है जो कि हर मंथ बनती है और ब्रेक डाउन होती है. इट इज़ एंडोमीट्रियम विच इज़ फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन. इट इज़ एंडोमीट्रियम विच इज़ फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन इज़ देयर. अगर हम एंडोमीट्रियम की लेयर को देखोगे तो आप देखिए ये दिस इज़ द लेयर, ये दिस इज़ द यूट्राइन एपिथेलियम है, यूट्राइन एपिथेलियम्स आ गए, ठीक है ना. तो यूट्राइन एपिथेलियम जो है इसके अंदर ये देखो जैसे यूट्राइन ग्लैंड्स आर देयर, यूट्राइन ग्लैंड्स आ गए, यहाँ पे ऐसे ब्लड सप्लाई होती है. तो ये जो यूट्राइन एंडोमीट्रियम है, इसकी फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है बेसल लेयर, एक होता है फंक्शनैलिस लेयर. एक होता है बेसल लेयर और एक होता है फंक्शनैलिस लेयर. बेसल लेयर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये आर्टरी स्पायरल शेप्ड हो जाती है, ठीक है. और ये देखिए यूट्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये यूट्राइन एपिथेलियम है, यूट्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोमीट्रियम इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. और ये देखा जाता है कि जो ये इसके फर्दर दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हुई हुई है, एंडोमीट्रियम बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर. एंड इट इज़ अ फंक्शनल लेयर विच इज़ शेड, ठीक है ना, ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल फ्लो. इट इज़ फॉर्म्ड एंड शेड, इट इज़ फॉर्म्ड एंड शेड. अगर पूछे कि एंडोमीट्रियम के अंदर क्योंकि बिकॉज एंडोमीट्रियम हैज फर्दर टू लेयर्स आर देयर, एंडोमीट्रियम लेयर्स हैज फर्दर टू पार्ट इज देयर, वन इज द बेसल लेयर अनदर इज द फंक्शनल लेयर, ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि दे हैव this tubular glands are there, this is surface epithelium, this is a tubular gland, this is connective tissues which is supplied by the blood vessels, it is highly supplied by the blood vessels, ठीक है. तो it is on the endometrium that fetus attach, ठीक है ना, एंडोमीट्रियम पे fetus attach होता है. तो तभी एंडोमीट्रियम की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, कि जिससे कि अगर जब fetus बन के आए तो वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो जो है यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम की भी कौन सी लेयर, फंक्शनल लेयर, वो टूट जाती है और वो शेड हो जाती है, ठीक है. देन कम्स द सर्विक्स पार्ट इज देयर, ठीक है ना. दिस इज मैंने कहा फंडस पार्ट, दिस इज बॉडी पार्ट, देन दिस इज द सर्विक्स पार्ट इज देयर. इट इज़ ए नैरो, इट इज़ ए स्मॉल नैरो, ठीक है ना, विच इज़ प्रेजेंट inferior extremity of the uterus, ये which is present towards the inferior extremity of the uterus, inferior extremities of the uterus. अगर मैं इसको इस डायग्राम से दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा कि inferior, ये देखो, ये देखिए, ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये दिस इज़ द सर्विक्स पार्ट आ जाता है. inferior extremities of the uterus, की यूट्रस का जो inferior वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसके एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है. और इसमें भी सेम वही लेयर चलती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम इज देयर, और दैट विल कम्युनिकेट विद द body of the uterus, with the lumen of the body of the uterus by the os interna, and on the other end it communicates with that of the vagina, that is called as an os externa is there, os externa is there, ठीक है. क्लियर हो गया. तो सर्विक्स के अंदर भी ये सेम वही लेयर्स जो थे एंडोमीट्रियम की जैसे लेयर्स थी कि उसमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, सेम जैसे एंडोमीट्रियम की मैंने क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूट्रस, व्हाटसोएवर एंडोमीट्रियम विल बी देयर, सेम टाइप ऑफ एंडोमीट्रियम विल बी आल्सो देयर इन द सर्विक्स इज देयर. देन दिस इज द वेजिनल कैनाल, ठीक है, इट लीड्स टू द वेजिनल कैनाल. सर्विक्स ओपन इनटू द वेजिनल कैनाल थ्रू एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज एन ऑस एक्सटर्ना कह देते हैं इस पार्ट को, दिस इज ऑस एक्सटर्ना. एंड सर्विक्स एंड वेजिना को हम कलेक्टिवली कह देते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है. नीट का क्वेश्चन है, इट इज़ कॉल्ड एज एन बर्थ कैनाल इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज एन बर्थ कैनाल. Now we come to the vagina is there, this is a vagina part आता है, ठीक है ना. vagina part जो होता है that is 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ का होता है. वेजिनल पार्ट इज 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ का चलता है ये, ठीक है. अगर मैं इंटरनल सरफेस ऑफ द वेजिना देखूं तो इफ़ यू सी दैट हैज़ इसमें जो वेजिना की जो वॉल देखोगे, पहली बात तो वेजिनल जो लेयर है मैं आपको इसमें बताता हूँ कि दैट इज़ आल्सो थ्रोन इनटू फोल्ड्स. तो इसको हम बोल देते हैं वेजिनल रॉग्स आर देयर. ये देखोगे, ये मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको. तो यू विल सी द वॉल ऑफ द वेजिना इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज एन वेजिनल रॉग कहा जाता है. वी नेम इट एज एन वेजिनल रॉग इज देयर. ये देखो, वॉल ऑफ वेजिना इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स आर देयर, ठीक है ना. तो ठीक है, दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. तो अंदर से जो वेजिना जो है, ठीक है, दैट इज आल्सो थ्रोन इनटू फोल्ड्स आर देयर, ठीक है. अब इसके भी अगर आप इसकी फर्दर अगर हम बात करते हैं
तो इसकी लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें भी 3 लेयर्स आ जाती हैं। इनर लेयर म्यूकोसल लेयर आ जाती है, ठीक है ना। इनर लेयर जो है ये म्यूकोसल लेयर आ जाती है, फिर जो मिडल वाली मस्कुलर लेयर आ जाती है और आउटर एडवेंटिशियस की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो ये जैसे अगर हम वेजिना को बनाएं, दिस इज द वेजिना इज देयर, ठीक है। तो इनर लेयर जो आ गई म्यूकोसल की लेयर आ गई, ठीक है, म्यूकोसल की लेयर आ जाती है, ठीक है। फिर बीच में मस्कुलर की लेयर आ जाती है, ये मसल्स की लेयर आ जाएगी, ठीक है। और आउटर जो लेयर आ गई डेट इज ऑफ द एडवेंटिशिया जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना, आउटर एडवेंटिशिया इज देयर। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो म्यूकोसल लेयर है डेट इज़ डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स, डेट इज़ डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स इज देयर, ठीक है ना, डेट इज़ डिवाइड ऑफ ग्लैंड। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो म्यूकोसल लेयर है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, ये स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है ना। ये देखो ये मस्कुलर लेयर आ गई, एडवेंटिशिया लेयर आ गई, और ये जो म्यूकोसल लेयर होती है डेट इज स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड होती है, इसके बाहर केराटिन नहीं होता और इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता, ठीक है ना। ये तो यूट्रस की जो सर्विक्स की सिक्रीशन होती है, यूट्रस के सर्विक्स पार्ट की जो सिक्रीशन होती है वो वेजिना तक आ जाती है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि जो वेजिना के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वेजिना के सेल्स होते हैं, दे स्टोर ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। मैंने क्या बताया कि एक तो वेजिना की जो म्यूकोसल लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो केराटिनाइज नहीं होती, वो डेड नहीं होती, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं व्हाट दे स्टोर द ग्लाइकोजन। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। वेजिनल म्यूकस हैव स्टोर ग्लाइकोजन, ठीक है ना। दिस रिजल्ट इन हार्बरिंग ऑफ बैक्टीरिया, जिसके कारण वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया कौन से? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोन्यूस्टॉक। वो बैक्टीरिया वहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं, ग्लाइकोजन की फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई वेजिनल ट्रैक इज एसिडिक, it has to be kept acidic. Why? Because acidic medium prevents the growth of any microbes are there, any microbes are there, ठीक है। अब फीमेल के अंदर अगर हम देखें ना क्या होता है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग आ गई, यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होती है, ठीक है। ये वेजिनल ओपनिंग आ गई, ठीक है ना। ये एनस की ओपनिंग होती है, तीनों की जो ओपनिंग्स हैं दे आर डिफरेंट इज देयर, दे आर डिफरेंट, ठीक है। इफ़ यू विल सी ये डायग्राम, अगर ये लेटरल डायग्राम देखोगे, लेटरल में आप देखोगे, आप देख रहे हो दिस इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग चल रही है, फिर वेजिनल की ओपनिंग चल रही है, देन दिस इज़ द एनस इज देयर, ठीक है ना। मेल के अंदर तो ऐसे होता है ना कि मेल के अंदर तो यूरेथ्रा से ही स्पर्म भी पास होते हैं, तो इसलिए हम यूरिनोजेंटल ओपनिंग बोल देते हैं। इसमें हम इसको कहेंगे, ठीक है ना, दिस इज़ द जेंटल ओपनिंग इज देयर एंड दिस इज़ यूरेथ्रा विच विल ब्रिंग ओनली यूरिन एंड देन कम्स द वेजिना, ठीक है। अब हमने वेजिना के बारे में भी पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा का भी नाम देते हैं, वल्वा का भी नाम देते हैं। ये देखो, अब क्या होता है कि वल्वा में उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिस होता है ये, ठीक है ना। ये अपर पार्ट होता है, ये इसके नीचे फैट्स होता है, कवर्ड बाय द स्किन है, ये हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक डिप्रेशन आता है, एंड डिप्रेशन सा होता है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय ये ऑन बोथ दी साइड। ये देखो, ये मॉन्स प्यूबिस आ गया, फिर एक डिप्रेशन आता है, एंड ऑन बोथ दी साइड, ठीक है ना, दिस डिप्रेशन इज कवर्ड ऑन बोथ दी साइड बाय द लेबियम मेजोरा, ठीक है ना। सिंगल को कहेंगे हम लेबियम मेजोरम, अब ये दोनों को कहेंगे लेबियम मेजोरा। ये जो डिप्रेशन है ना, डिस डिप्रेशन, एक इट इज़ कवर्ड बाय ये लेबियम मेजोरा, जो कि स्किन का बना होता है, स्किन का बना होता है। इसमें हेयर्स भी होते हैं, ठीक है ना, दे हैव आल्सो हेयर्स, दे हैव आल्सो सेबेशियस ग्लैंड इज देयर। और ये माना गया कि जो लेबियम मेजोरा है इट इज़ लाइक ए होमोलोगस टू द स्क्रोटम सैक इन द केस ऑफ फीमेल, ठीक है। उसके नीचे अंदर की लेयर आती है डेट इज़ द लेबियम माइनोरा, उसके अंदर एक लेयर आती है डेट इज़ कॉल्ड एज एन लेबियम माइनोरा इज देयर, ठीक है ना, लेबियम माइनोरा। इसमें हेयर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जबकि लेबियम मेजोरा में हेयर्स होंगे, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है ये इसके नीचे थिक लेयर ऑफ फैट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड आएंगे। लेबियम माइनोरा के अंदर आपको सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लेबियम माइनोरा के अंदर ये जो अंदर कैविटी आ रही है इसको हम वेस्टिब्यूल कह देते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे लेबियम माइनोरा आपस में मिलते हैं वहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू द पेनिस, ठीक है ना, पेनिस की तरह होती है। और जैसे पेनिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, 2
इसमें भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जहाँ पे ये लेबिया माइनोरा आपस में मिल रहा है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये देखो लेबिया माइनोरा आ गया, ठीक है, दिस इज क्लाइटोरिस आ गई, जहाँ पे लेबिया माइनोरा मिल रहा है उसको हम बोल लेते हैं फॉर्किट्स, उस पॉइंट को हम बोल लेते हैं फॉर्किट्स इज देयर, एंड दिस इज एनस, और फॉर्किट्स और एनस के बीच में जो स्पेस आती है उसको हम बोल लेते हैं पेरिनियम, उसको हम क्या नाम बोल देते हैं, वी नेम इट एज एन पेरिनियम, ठीक है ना, पेरिनियम बोल देते हैं। ये देखा गया कि लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू द पेनाइल यूरेथ्रा, labia minora is homologous to the penile urethra, labia majora is homologous to the scrotum, labia minora is homologous to the penile urethra। उसके अंदर जो कैविटी इनक्लोज हो रही है that is called vestibule, and its vestibule is जिसको बोल देते हैं it is homologous to the membranous urethra of male, जबकि लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू द पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा, और ये जो वेस्टिब्यूल है दैट इज होमोलोगस टू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये दोनों को कंपेयर किया गया। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओपनिंग्स हैं, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग आ गई, नीचे वेजिनल ओपनिंग आ गई, दिस इज अ वेजिनल ओपनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, देयर आर ग्लैंड्स आर देयर जिसको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल देते हैं। कुछ ग्लैंड जो होते हैं दे आर यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर देयर विच आर प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा, इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह देते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह देते हैं, और ग्लैंड ऑफ स्किनी भी कह देते हैं, एंड इट इज़ होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड इट इज़ होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, इसके आसपास जो ग्लैंड होते हैं। और यहाँ पे वेजिना के आसपास जो ग्लैंड होते हैं उसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स बोल देते हैं या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल देते हैं। ये इसकी सिक्रीशन जो है लुब्रिकेट करती है, इसकी सिक्रीशन जो है लुब्रिकेशन करती है, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू द कॉर्पस ग्लैंड इज देयर। जो वेजिना की ओपनिंग होती है ना, ये दे आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, जिसको हम हाइमेन का भी नाम बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइमेंस है, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट शेप्स ऑफ हाइमेंस होती हैं, देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द हाइमेंस आर देयर। इफ़ यू विल सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइमेन, तो यू विल फाइंड द डिफरेंट शेप्स ऑफ हाइमेन। तो वो जो हाइमेन जो होती है, जैसे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर देयर। वो मैं अभी आपको इसमें दिखाता भी हूँ कि कैसे वो डिफरेंट शेप्स की जो हाइमेंस आर देयर, ठीक है। तो वो आप देखोगे तो उसमें ये जो हाइमेंस होती है ये रैप्चर कर जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। कईयों में तो ये पहले भी रैप्चर कर जाती है ड्यू टू एनी रीज़न। देखो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द हाइमेंस आर देयर, ठीक है ना। किसी में ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ हाइमन है, वेजिनल की जो ओपनिंग है, ठीक है ना। नॉर्मली इट इज़ ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स इज देयर, बट समटाइम इट इज़ आल्सो considered as a sign of virginity, but not you can say कि 100% sign of virginity is there, because sometimes it is broken when the female is doing exercise or cycling or horse riding or due to any cause is there, ठीक है। तो ये जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एंड ओके देन।